Okay, until that time I will revise those concepts again. Okay. So why we need this sampling distribution? Okay, so as we know that entire population cannot be studied due to several reasons. There are many restrictions to check any given result or any given hypothesis for the entire population. Okay, so in such cases sampling is the only alternative. Okay, so there are two types of sampling method. One is probability sampling and second is the non-probability sampling. Okay, so can anyone tell me what is the difference between probability sampling and non-probability sampling, which I already explained in the last session? What is the difference between probability and non-probability sampling? Yes? Anyone? What is the difference between probability sampling and non-probability sampling? Huh? What is the difference? Anyone? Probability sampling. Probability sampling मध्ये quality चांगली असते. Okay. Correct. Okay, but the major difference is what? Probability sampling, okay, is totally depend on the random selection. Okay, random selection. And the non-probability, in case of non-probability sampling, okay, here we select the sample according to our convenience. Okay, so that's the exact difference between probability sampling and non-probability sampling. Okay, so remember, as probability word itself tell you everything. Okay, here the selection is totally random. Okay, and as the selection is random, the quality is okay, it gives the more quality. Okay, if you compare with the non-probability sampling. So yes, and the different there are, I guess, four types of probability sampling are there. One is simple random sampling. So what is simple random sampling? Every item in the population, in simple random sampling technique, every item in the population has an equal and likely chance of being selected in the sample. And since the item selections entirely depend on the chance or on the chance, therefore this method is also called as method of chance of selection. Okay, so simple random sampling means what? Randomly you have to take that sample. Okay, for example, suppose we want to select a simple random sample of 200 student. आपके पास 200 स्टूडेंट है, आपको 200 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है. Okay, using simple random sampling. So what we can do, okay, from say from one institute. So suppose in that institute there are 500 students. आपके इंस्टीट्यूट में एज्यूम करो कि 500 स्टूडेंट हैं, उनमें से आपको 200 स्टूडेंट को रैंडमली सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करना है यूजिंग सिंपल रैंडम टेक्निक. ओके, सो व्हाट वी कैन डू, we can assign number to every student in the school from 1 to 500, and then you can use the random number generated function, okay, in computer, and you can select those 200 samples. Okay, तो ये भी आप कर सकते हो. और आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे. ओके, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का यूज़ करके आप ये सिलेक्शन कर सकते हो, या आप किसी और को भी डायरेक्टली बोल सकते हो कि चलो जो चिट का एग्जांपल मैंने आपको कल दिया था, ठीक है, अगर आप बॉक्स में कुछ चिट डालते हो, ओके, एंड सपोज देयर आर 100 चिट इन द बॉक्स. ओके, उनमें से आपको कोई भी 10 रैंडम सैम्पलिंग कलेक्ट करने, तो आप वो बॉक्स में से रैंडमली अगर आप निकालते हो, दैट आल्सो कम्स अंडर दिस सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. ओके, सो मेनी एग्जांपल्स यू कैन गिव अंडर दिस सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. Next is the systematic sampling. In systematic sampling, the items are selected from a larger population, okay, according to random starting point. तो इस sampling method में क्या होता है, आपको पहले random sampling random starting point पहले fix करना है, okay, and after that with the fixed interval you have to collect the remaining samples. Okay, so for example, suppose we have these many members, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay, so this is the population.
and from this population we have to collect the sample using systematic technique. Okay, so first of all you have to fix our random starting point anywhere you want. Okay, so let me fix my starting point here. Okay, so in my sample the first element is 3. Okay, now so from this starting point with the fixed periodic interval, okay, with the fixed periodic interval we have to collect the remaining sample. So let me keep the interval of length 1. Okay, so my next sample become 5. Okay, one difference से अगर मैं आगे जाता हूँ तो मेरा नेक्स्ट सैंपल क्या आने वाला है 5. Okay, again one difference, next sample is 7. Okay, one difference, next sample is 9, like this. So this comes under systematic sampling. Okay, तो दो चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है. फर्स्ट क्या है, you have to start with the random starting point. तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है. And after that, after a fixed periodic interval, you have to collect those sample. Okay, so this process is called as systematic sampling. Okay, and this interval is also called as sampling interval. Okay, yes. Okay, and one example is there that you can refer for the systematic sampling. Suppose the names of 300 students of a school are sorted in a reverse alphabetical order. आपके पास एक 300 student की list है. Okay, we have to choose some 15 students by randomly selecting a starting number. Okay, say 5 है ना, 300 student की list है. आपने क्या किया है, 5th नंबर का जो स्टूडेंट है, ओके, 5th नंबर का जो स्टूडेंट है वहाँ से आप सिलेक्शन स्टार्ट कर रहे हो. सो दिस पोजीशन इज द this position become the random starting point. This position become the random starting point. So from number 5 onwards we'll select every 15th person. तो यहाँ पे जो इंटरवल की जो लेंथ है वो मेरी क्या है 15 है. सो आफ्टर एवरी 15th person I will select my next sample. Okay, so this experiment also comes under systematic sampling. Okay, तो अभी पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन कैसे आने वाले. ठीक है, सो क्वेश्चन में मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दूंगा. फॉर एग्जांपल अगर ये सेम एक्सपेरिमेंट मैं क्वेश्चन में देता हूँ, ओके, एंड आफ्टर दैट in 4 option I will give like simple sample simple random sampling, next systematic sampling, statistic sampling, like that. Okay, 4 options में दूंगा. तो आपको उसमें से ये सिलेक्ट करना है कि नहीं ये जो एक्सपेरिमेंट है, दिस एक्सपेरिमेंट, और इन दिस एक्सपेरिमेंट व्हाटएवर सैम्पलिंग इज देयर दैट सैम्पलिंग कम्स अंडर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. तो ये आपको वहाँ पे गेस करना है. इसी टाइप के सारे क्वेश्चन. ओके, तो जितने ज़्यादा एग्जाम्पल से आप इसको अंडरस्टैंड करोगे उतना वो जल्दी आपको समझ में आएगा. ओके, सो नाउ दिस 2 सैम्पलिंग आर क्लियर, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. एनी डाउट? अब ये 2 क्लियर हो गए आपके, सिस्टमैटिक एंड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में रैंडमली सिलेक्शन आपका होता है, टोटल रैंडम बेस्ड सिलेक्शन आपका होता है. आप कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हो या किसी और की हेल्प, जो आपके फील्ड में नहीं उसकी हेल्प लेके भी आप रैंडम सिलेक्शन कर सकते हो, कैसे भी. ओके, सो एट देन दैट सिलेक्शन मस्ट बी रैंडम. ओके, सो दैट इज योर फर्स्ट पार्ट. सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, एक रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसके बाद फिक्स इंटरवल से आप वो सैंपल कलेक्ट करते हो. क्लियर हो गया पार्ट अभी तक? बोलो जल्दी. यस और नो? ओके, हाँ, एंड ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में भी रिपीट किया था. नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. ओके, और आपको मैंने बोला था कि इन नेक्स्ट सेशन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग. ओके, ये 2 लास्ट टॉपिक्स थे. सो नाउ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड किए सो दैट यू विल हैव अ क्लियर difference between the stratified and clustered sampling. Okay, so third, in a stratified sampling method the total population is divided into subgroups. Okay, अब इस सबग्रुप में आपको डिवाइड करना है कैसे, डिपेंड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक. Okay, so that subgroup is also called as strata. To complete the sampling process, the small group or the subgroup is formed based on few characteristic. Okay, so using some characteristic we have to divide the whole population into smaller subgroups. Okay,
दैट सब ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्राटा. ओके, अभी कैरेक्टरिस्टिक में आप एज ले सकते हो, आप कलर ले सकते हो, है ना. सो एनी कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड ऑन द गिवन क्वेश्चन. बट उसमें भी कुछ केसेस है या उसमें भी कुछ कंडीशंस है, तो वो मैं यहाँ पे नीचे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो फर्स्ट कंडीशन क्या है, ईच सब ग्रुप इज अ होमोजेनियस इन नेचर. मतलब वो जो सब ग्रुप्स आप यहाँ पे, फॉर एग्जांपल दिस इज योर पॉपुलेशन, जस्ट अ मिनट, फॉर एग्जांपल दिस इज योर पॉपुलेशन, ठीक है. सो यहाँ पे 1-1 करता हूं मैं. सो दिस इज योर पॉपुलेशन. ओके, हाँ, अभी इसमें मैं क्या करने वाला हूं. ओके, सो आई हैव टू डिवाइड दिस पॉपुलेशन इनटू अ सब ग्रुप्स, ओके, विच हैविंग सम कैरेक्टरिस्टिक. ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, 5-1 में एक ग्रुप में करने वाला हूं. 5-1 5-1 5-1, दिस बिकम माय फर्स्ट सब ग्रुप, एंड 5-2 5-2 में एक ग्रुप में करने वाला. ठीक है, सो दिस आर कॉल्ड एज सब ग्रुप्स. ओके, हाँ, बट ये एक जो स्टेटमेंट है, इससे आप एक्चुअली डिफरेंशिएट कर पाओगे स्ट्रैटिफाइड में एंड क्लस्टर में. सो ईच सब ग्रुप इज होमोजेनियस इन नेचर. तो यहाँ पे जो सब ग्रुप आप फॉर्म कर रहे हो ना, तो सब ग्रुप्स आर होमोजेनियस इन नेचर. फॉर एग्जांपल, अगर आप कलर से डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है, अगर आप कलर से डिफरेंशिएट करते हो, एक ग्रुप आपका फॉर एग्जांपल येलो कलर का होगा, तो इनमें जितने भी मेंबर्स है सबका कलर येलो ही चाहिए. दैट मस्ट बी होमोजेनियस इन नेचर. whatever characteristic, whatever property is there of that subgroup, that property must be homogeneous in nature. That must homogeneous in nature. ठीक है, तो ये एक पार्ट आपको इसमें याद रखना है. नेक्स्ट क्या है, सिंपल रैंडम सैंपल इज टेकन फ्रॉम ईच सबग्रुप. ओके, और उसके बाद आप क्या करते हो, यू कैन टेक अ सिंपल यूजिंग सिंपल रैंडम टेक्निक, यू कैन कलेक्ट सैंपल फ्रॉम दिस. तो सब ग्रुप में डिवाइड करने के बाद, ओके, सब ग्रुप में डिवाइड करने के बाद फ्रॉम ईच सब ग्रुप, ओके, यूजिंग द सिंपल रैंडम टेक्निक, यू हैव टू कलेक्ट दोज सैंपल्स. ठीक है, ये था आपका स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. ओके, इमीडिएटली पहले मैं क्लस्टर सैम्पलिंग एक्सप्लेन करता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू द डिफरेंस बिटवीन दिस stratified and clustered sampling. So in a clustered sampling method, the cluster or a group of people are formed from the population set. तो इसमें भी अगर आप देखते हो तो सेम लॉजिक समझ में आएगा. इसमें भी आप गिवन पॉपुलेशन को एक क्लस्टर में या एक ग्रुप में डिवाइड करते हो. यहाँ पे मैं सब ग्रुप वर्ड यूज नहीं कर रहा, बट एक क्लस्टर या आप ग्रुप में इनको डिवाइड करते हो. ओके, बट इंपॉर्टेंट चेंज यहाँ पे क्या है, each cluster is a representative of a small scale version of the population. तो ये जो cluster होता है, it is that cluster is actually a representative of your population set. Representative of a population set क्या होता है, मैं आपको explain करता हूँ. So it is in heterogeneous in nature. So for example, मैंने एक simple example ही लिया है यहाँ पे. Okay, ये एक एग्जांपल आप देखो. ओके, एक फ्रूट मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, एंड सो दिस इज माय पॉपुलेशन. इसको आप ट्रीट कर सकते हो पॉपुलेशन, एंड दिस फर्स्ट क्लासिफिकेशन और दिस फर्स्ट सैम्पलिंग इज कॉल्ड एज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, एंड दिस इज कॉल्ड एज क्लस्टर्ड सैम्पलिंग. सो कैन एनीवन एक्सप्लेन मी What is the difference between this? आपको इन दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? Anyone? कैप्सिकम का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, आप बोलो आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है? What is the difference between stratified sampling and clustered sampling? Anyone? Can you try? What difference you can find here? बोलो. कोई भी डिफरेंस नहीं है क्या दोनों में, स्ट्रैटिफाइड में और क्लस्टर्ड में? स्ट्रैटिफाइड में हमने कैरेक्टर्स के बेस पे सब ग्रुप के, और क्लस्टर में हमने वैसे नहीं किया, हमने किसी भी सब ग्रुप तैयार कर लिया. हाँ, तो इसमें जो आपको एक सब ग्रुप दिखाई दे रहा है, इट विल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर होल पॉपुलेशन. करेक्ट ना? जो क्लस्टर आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ओके, दैट
that every cluster is actually a representative of this given whole population. ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना आपको पहले, करेक्ट? अब देखो ना, इसमें सारे कलर आ रहे हैं, येलो आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, एवरी कलर इज कवर्ड इन योर क्लस्टर. सो दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर पॉपुलेशन, देयरफॉर इट इज अ क्लस्टर. ओके, स्ट्रैटिफायर में क्या होता है, बाय सम कैरेक्टरिस्टिक आपने इसको डिवाइड किया. वी कांट से दैट दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर होल पॉपुलेशन. जैसे इसमें ग्रीन कलर के ही कैप्सिकम है, सो कैन इट बी अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर होल पॉपुलेशन? ऑब्वियसली नॉट. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटिफाइड एंड क्लस्टर. अब इसके आगे आप देखो, यहीं पे हमारी सैम्पलिंग कंप्लीट नहीं होती. सैम्पलिंग में क्या करना पड़ता है, पॉपुलेशन को आपने स्ट्रैटिफाइड में कन्वर्ट किया है, फिर उसके बाद यहाँ से आप कुछ फ्रॉम दिस फर्स्ट सब ग्रुप यूजिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. ओके, we will select few members from this. ओके, सिंपल रैंडम टेक्निक से यहाँ से कुछ मेंबर्स आने वाले, सिंपल रैंडम टेक्निक से यहाँ से भी कुछ मेंबर्स आने वाले, यहाँ से भी आने वाले, यहाँ से भी आने वाले. फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं इफ आई टेक 2 ग्रीन फ्रॉम दिस, 2 ऑरेंज फ्रॉम दिस, 2 रेड फ्रॉम दिस एंड 2 येलो फ्रॉम दिस, लाइक दिस. सो दिस बिकम माई सैम्पलिंग. ओके, दिस इज माई फाइनल स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. बट इसमें आप क्या करते हो, अभी यहाँ पे मैंने क्या है, जो सब ग्रुप है उन सब ग्रुप में से भी मैंने उन सब ग्रुप के लिए मैंने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक यूज करके उसके बाद मैं सैंपल कलेक्ट कर रहा हूँ, करेक्ट ना? तो आप देखो 3 स्टेप में ये हो रहा है. पहले ये पॉपुलेशन थी, उसको स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक से इसमें से मैं सैंपल कलेक्ट कर रहा हूँ. दिस इज माई अप्रोच. बट व्हेन वी आर इन क्लस्टर्ड सैम्पलिंग, ओके, इसको आपने क्लस्टर में कन्वर्ट किया, फिर इसमें आप क्लस्टर में से क्लस्टर के लिए या क्लस्टर के अंदर जो एलिमेंट्स या जो फ्रूट्स आपको दिखाए थे रहे, वहां पे आप सिंपल रैंडम टेक्निक यूज नहीं कर रहे हो, आप एज अ क्लस्टर, एक होल क्लस्टर बिकम योर सैंपल. सो दिस होल क्लस्टर इटसेल्फ बिकम अ सैंपल. तो इन क्लस्टर में से कुछ क्लस्टर आप सिलेक्ट करने वाले, फॉर एग्जांपल ये क्लस्टर में सिलेक्ट करूंगा, ये एक सिलेक्ट करूंगा, ये सिलेक्ट करूंगा. सो दैट बिकम माय सैंपल. आर यू गेटिंग द डिफरेंस? यहाँ पे जो एक क्लस्टर होता है, उन क्लस्टर के लिए मैं क्या, कौन सी टेक्निक, तो इन क्लस्टर के लिए मैं सिंपल रैंडम टेक्निक यूज करने वाला टू कलेक्ट द सैंपल. तो वो दैट होल क्लस्टर बिकम माय वन एलिमेंट. यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो सब ग्रुप्स है, सब ग्रुप्स के अंदर जो एलिमेंट है उनके लिए मैं सिंपल रैंडम टेक्निक यूज करने वाला हूँ. आर यू गेटिंग द डिफरेंस? यस और नो? आर यू गेटिंग द डिफरेंस? हाँ. तो अगर मैं तो फाइनल अगर सैंपल सेट मुझे यहाँ से लिखना है इसके लिए, तो मेरे पास फर्स्ट केस में आई मे गेट 2 ग्रीन, 2 ऑरेंज एंड 2 रेड, लाइक से 2 येलो कैप्सिकम. ओके, दिस इज द फाइनल सैम्पलिंग यूजिंग स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. दिस इज द फाइनल सैंपल ऑफ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. क्लस्टर में क्या होगा, ये जो पूरा जो फर्स्ट क्लस्टर है, दिस होल वो एक आएगा, ठीक है. फिर ये थर्ड बोलता हूँ, इसको मैं फोर्थ बोलता हूँ. पूरा थर्ड क्लस्टर आपको लेना है एज इट इज, एंड यू हैव टू सिलेक्ट दैट फोर्थ क्लस्टर एज इट इज. तो ये क्लस्टर ही डायरेक्टली यहाँ पे मैं रख रहा हूँ. तो उस क्लस्टर के अंदर 1 रेड, 1 येलो, 1 ऑरेंज, 1 ग्रीन, सारे कलर यहाँ पे आ रहे हैं. ओके, सो दिस इज द सैंपल under stratified sampling and this is the sample under cluster sampling. Okay, अभी क्लियर हो रहा है? So what is the exact difference between the stratified sampling and clustered sampling? Okay. Yes, and वही मैं आपको कल एक्सप्लेन कर रहा था, और यहाँ पे एक स्टूडेंट का डाउट भी था कि सर ये जो परसेंटेज जो रहता है, या मतलब फर्स्ट सब ग्रुप, सेकंड सब ग्रुप एंड थर्ड सब ग्रुप, टोटल हियर, सो इन दिस केस वी हैव 3 सब ग्रुप्स. तो उन सब ग्रुप में से आपको इक्वल परसेंटेज में ही सैंपल कलेक्ट करना है. तो इसके आगे रैंडम, तो वो अभी मैंने क्लियर कर दिया. सो फ्रॉम दिस फर्स्ट सब ग्रुप जो भी आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हो, इट इज एक्चुअली सिंपल रैंडम सैंपल. बट जनरली लोग इक्वल परसेंटेज में ही कलेक्ट करते हैं, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी. इट इज़ अगेन डिपेंड ऑन यू, ये आपकी चॉइस है कि आप और सिंपल रैंडम टेक्निक से तो सिलेक्ट करना ही है, बट वो आप इक्वल परसेंटेज में करो या अनइक्वल परसेंटेज में करो, दैट डिपेंड ऑन यू. और यहाँ पे आप देखो
इसमें भी ग्रुप्स है, बट जब आपका फाइनल जो सैंपल है उस सैंपल में एज इट इज़ क्लस्टर आपका आ रहा है, 5-6 क्लस्टर आ रहा है और 11-12 आपका क्लस्टर आ रहा है, एज इट इज़ द होल क्लस्टर इज देयर. ओके, सो वेदर दिस 4 types are clear: simple random sampling, totally random; systematic sampling, one random starting point, after that with the fixed interval we have to collect the remaining samples; stratified sampling, first create a subgroups with some characteristic and then use simple random technique to select samples from those subgroups, then use simple random sampling technique to collect samples from those subgroups. Okay, cluster sampling, so that whole population is divided into a cluster, then amongst that cluster, okay, so or for those cluster use simple random technique to collect the sample, so that whole cluster become one sample. Okay, yes. So any doubt in these 4 types? Any doubt? No, sir. Okay, so yeah, so now we will define the next method or next type, which is non-probability sampling. Okay, so the non-probability sampling method is a technique in which researchers select the sample based on subjective judgment rather than the random selection. Okay, yeah, इसको आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू हिज कन्वीनियंस. ओके, आपको मैंने कल एक एग्जांपल भी दिया था. ओके, अगर कोई आप कंपनी का एक एग्जांपल लेते हो, ओके, उनको अगर उनके जो प्रोडक्ट है, ओके, उसकी अगर पब्लिसिटी करनी है, ओके, तो जनरली वो क्या प्रेफर करते हैं, नियर बाय जो मॉल्स है या जो शॉप्स है वहाँ पे जाके वो पम्पलेट या स्कूल है, कॉलेज है, ओके, जहाँ पे आपको पता है कि जहाँ पे क्राउड ज़्यादा होगा, ऐसे प्लेसेस में जाके वो आपको पम्पलेट सर्कुलेट करते हैं. ओके, तो ये सबसे इजी होता है, दैट कम्स अंडर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, है ना, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से जहाँ पे आपको पॉसिबल हो रहा है आप वहीं पे जाके पब्लिसिटी कर रहे हो. ओके, अगर वो सेम पार्ट अगर आप रैंडम सिलेक्शन में देखते हो तो ऐसा हो सकता है कि आपको आउट ऑफ द महाराष्ट्र जाके भी वो पब्लिसिटी करनी होगी. ओके, सो रैंडम सिलेक्शन और रैंडम सैम्पलिंग इज सैम्पलिंग को करना डिफिकल्ट होता है, बट उससे जो रिजल्ट आपको मिलता है वो हमेशा क्वालिटी रिजल्ट मिलता है. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ योर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. एंड let us discuss different types of this non-probability sampling. So one is convenience sampling. Okay, so convenience sampling is a non-probability sampling technique where samples are selected from a population only because they are conveniently available to a researcher. ठीक है, conveniently available to a researchers. अभी ये जो convenient होता है ये researcher पे डिपेंड करेगा कि उसको कौन से केस में कन्वीनियंट, मतलब उसका कन्वीनियंस उसके हिसाब से होगा. ठीक है, रिसर्चर चूज दिस सैम्पल जस्ट बिकॉज दे आर इजी टू रिक्रूट एंड रिसर्चर डिड नॉट कंसिडर सिलेक्टिंग अ सैम्पल दैट रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन. ये तो अभी क्लियर हो गया. ओके, अगर मैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कुछ स्टूडेंट्स को लेके, ओके, जैसे कल एक एग्जांपल दिया था, मुझे अगर ये चेक करें कि कितने परसेंटेज स्टूडेंट को, ओके, मैथमेटिक्स राइट करना आ रहा है, ओके, इफ आई वांट टू चेक दिस पार्ट, तो अगर मैं मेरे डिवीजन के स्टूडेंट लेता हूँ तो देन इट बिकम माय कन्वीनियंस. चलो मुझे पता है, आई ऑलरेडी इंटरेक्टेड विद दोज स्टूडेंट्स, दे नो माय टीचिंग. ठीक है, तो ये मेरी कन्वीनियंस थी. ओके, सो दिस इज माय कॉल, है ना, तो ये मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से होगा. सो दैट कम्स अंडर कन्वीनियंस सैम्पलिंग. ओके, हाँ, सो ऑब्वियसली दैट विल नॉट रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन. ठीक है, बट उससे जो रिजल्ट मुझे मिलेगा या वो जो सैंपल में कलेक्ट करूँगा फ्रॉम माय डिवीजन, इट विल नॉट रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन, ऑब्वियसली नॉट, है ना, ऑब्वियसली नॉट. For example, a basic example of a convenience sampling method is when companies distribute their promotional pamphlets and ask questions at a mall or on a crowded street with randomly selected participants. ये आपने ऑलरेडी देखा ही होगा. ओके, दिस इज द रियल लाइफ एग्जांपल, जहाँ पे आप जनरली कॉलेज के सामने या किसी मॉल के सामने
okay, you will see this distributor, okay, so that comes under convenience sampling. फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको क्वेश्चंस इसके ऊपर ऐसे आने वाले कि एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन में डिफाइन होगा, आपको बस ये देखना है कि इसमें जो सैम्पलिंग है ये कौन से टाइप के अंदर आ रही है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग है या स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है या क्लस्टर्ड सैम्पलिंग है, वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस रहेंगे। Businesses use this sampling method to gather information to address critical issue arising from the market, okay, तो this is the first type। हाँ, और यहाँ पे आप देखो एक एग्जांपल मैंने लिया, okay, if this is the researcher, so इसका थॉट क्या है यहाँ पे, I will choose member that are closest to me, okay, तो ये उसके लिए इजी होगा या कन्वीनियंट होगा, है ना। So to check that hypothesis, what is the sample set of this researcher, this, so this become the sample of that researcher, ठीक है, क्योंकि उसके कन्वीनियंट के हिसाब से वो इन स्टूडेंट को या इन पार्टिसिपेंट्स को वो अप्रोच कर सकता है, ओके। So that is first type. Next is consecutive sampling. This non-probability sampling method is very similar to convenience sampling with a slight variation. Here the researcher picks a single person or group of sample, conduct research over a period, analyze the result and then moves to another subject or group if needed. Can anyone explain me? The same example जो अभी मैं आपको दे रहा था, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट अगर आप करते हो मॉल के सामने या किसी क्राउडेड एरिया के सामने, सो कैन एनीवन एक्सप्लेन मी हियर व्हाट इज द कॉन्सिक्यूटिव सैम्पलिंग? इट इज सिमिलर टू दिस, इट इज सिमिलर टू द कन्वीनियंस सैम्पलिंग, बट क्या होता है इस केस में क्या होता है, चलो आपने पहले मॉल के सामने जाके पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किए थे और वहाँ से आपने कुछ सैम्पलिंग कलेक्ट किए, ओके, मॉल के सामने आपने कुछ सैम्पलिंग कलेक्ट किए, देन यू मूव टू दी वन शॉप, ओके, एनी शॉप, है ना, चलो ये मॉल था, आप किसी अदर शॉप में जाओगे, ठीक है, वहाँ से आप सैंपल कलेक्ट करोगे, देन यू अगेन मूव टू द प्लेस वेयर विच इज़ क्राउडेड, है ना, वो शॉप होगा या ओपन ग्राउंड होगा, कुछ भी हो सकता है, बट वी नो दैट दिस प्लेस इज क्राउडेड। सो वहाँ से भी आपने एक सैंपल कलेक्ट किया, ओके, तो ए एरिया से, बी एरिया से और सी एरिया से, ऐसे तीनों जगह से आपने क्या किया, वो सैंपल कलेक्ट किया, सो दैट कम्स अंडर कॉन्सिक्यूटिव सैम्पलिंग, ठीक है। तो सेम इट इज़ अ कन्वीनियंट सैम्पलिंग, बट आप लोकेशन चेंज कर रहे हो या आप मूव कर रहे हो अपना लोकेशन, ओके, that comes under consecutive sampling. For example, a basic example of consecutive sampling method is when companies distribute their proportional pamphlets and ask question at a mall on a crowded street with a randomly selected participant. तो सेम ही एग्जाम्पल है, एंड उसके आगे बस मैंने स्टेटमेंट ऐड किया, एंड देन मूव टू द नेक्स्ट लोकेशन, ओके, एंड देन मूव टू द नेक्स्ट लोकेशन। तो ऐसे डिफरेंट लोकेशन पे, अगर आप डिफरेंट लोकेशन पे विच इज़ कन्वीनियंट टू यू, ओके, अब ये आप सारी चीज़ें जब आप ये देख रहे हो ना, ये सारे लोकेशन उसके लिए कन्वीनियंट थे, ओके, तो उन सारे लोकेशन पे जाके अगर वो सैंपल कलेक्ट करता है, देन दैट कम्स अंडर कॉन्सिक्यूटिव सैम्पलिंग, ओके। फॉर एग्जांपल दिस, ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट सैंपल कलेक्टेड एट से मॉल, दिस इज द सेकंड सैंपल कलेक्टेड एट वन शॉप, okay, this is the third sample collected on the ground, some ground where a crowd is present, like that, okay, so that comes under consecutive sampling, clear? तो सेम प्रोसेस है, अगर आप डिफरेंट लोकेशन पे करते हो, then that comes under consecutive sampling. Next is quota sampling, okay. Quota sampling is defined as a non-probability sampling method in which a researcher create a sample involving individual that represent a population. The main reason why researchers choose quota samples is that it allows the researcher to sample a subgroup that is of great interest to study. Okay, तो इस केस में बेसिकली क्या होता है, एक वर्ड को मैंने वहाँ पे हाईलाइट किया, यहाँ पे बेसिकली क्या करते हो, ओके, कन्वीनियंट के हिसाब से आप जाने वाले हो, बट यहाँ पे ओके, हाँ,
which researcher create a sample involving individual that represent a population. ओके बट यहाँ पे आप ये भी देखते हो, चलो फॉर एग्जांपल अगर मुझे इफ आई वांट टू डू एनी रिसर्च रिगार्डिंग से टीचिंग पैरामीटर, इफ आई वांट टू डू अ रिसर्च रिगार्डिंग टीचिंग पैरामीटर, कुछ तो मेरे हाइपोथेसिस होगा रिगार्डिंग द टीचिंग पैरामीटर. ओके सो चलो कन्वीनियंस के हिसाब से जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे सारे लोग तो टीचर्स नहीं रहेंगे, ठीक है. अगर मैं वहाँ से अगर मैं लेता हूँ देन दैट कम्स अंडर कन्वीनियंस सैम्पलिंग. ओके बट अगर मैं सारे मेरे जो कलीग है, ऑफिस के जो कलीग है, ओके उनको अगर मैं टारगेट करता हूँ, ओके तो उनसे जो भी मुझे रिजल्ट मिलेगा वो ज़्यादा क्वालिटी का रिजल्ट होगा. तो अगर मुझे कोई हाइपोथेसिस चेक करना है विच इज रिलेटेड विद द टीचिंग, एंड इफ आई collect a sample of only teachers, if I create a sample of only teachers, then that comes under quota sampling. तो यहाँ पे एक बेनिफिट आपको क्या मिलता है, आप उन्हीं लोगों को ऐसे पार्टिसिपेंट्स आप यहाँ पे चूज कर सकते हो which having some interest in your study. Are you getting my point? Under quota sampling you can select those participants which having some interest in your research. Clear? Yes or no? तो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, डिपेंड ऑन द हाइपोथेसिस, जो आपका हाइपोथेसिस है उस अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से सैंपल क्रिएट कर सकते हो. ओके टीचिंग रिलेटेड तो आप टीचर्स को टारगेट कर सकते हो, कोई किसी बिजनेस रिलेटेड तो आप किसी बिजनेसमैन को टारगेट कर सकते हो, लाइक दैट. ओके सो जो आपका हाइपोथेसिस है डिपेंड ऑन दैट यू कैन क्रिएट योर सैंपल. दैट कम्स अंडर कोटा सैम्पलिंग. फॉर एग्जांपल डिवाइड द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स into 30% fresher, 25% junior, 20% senior. It means if you sample, it simply means you are the one who can create this sample. Okay, अब अपने हिसाब से सैम्पलिंग क्रिएट कर सकते हो. अभी यहाँ पे क्वेश्चन आपको पता नहीं है क्या है, बट इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू क्रिएटिंग अ सैंपल विच हेल्प इन अ रिसर्च. ये भी इतना ज़्यादा उस कोटा सैम्पलिंग को रिलेट नहीं करता, बट इन जनरल कोटा सैम्पलिंग में आप ऐसे लोगों को लेते हो जो आपका जो टॉपिक है उसमें हेल्प करें या विच गिव द मोर क्वालिटी रिजल्ट इन योर रिसर्च. ओके लाइक दिस. ओके अगर आप एजेड स्टूडेंट पे या एज के हिसाब से अगर आपका कोई रिसर्च है तो उस अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है. और कोटा इज सिंपली नथिंग बट यू कैन क्रिएट अ सैम्पल अकॉर्डिंग टू यू. यू कैन क्रिएट अ सैम्पल अकॉर्डिंग टू यू. तो उसमें मे बी उसका थॉट होगा इट विल हेल्प इन अ रिसर्च, मे बी नहीं भी होगा, बट यू कैन क्रिएट अ सैम्पल. ओके दैट रिप्रेजेंट अ होल पॉपुलेशन. यू कैन क्रिएट अ सैम्पल. तो क्रिएट पे फोकस करो, दैट कम्स अंडर कोटा सैम्पलिंग. नेक्स्ट इज जजमेंटल सैम्पलिंग सिंपली. ओके जजमेंटल सैम्पलिंग में क्या होता है, रिसर्चर सिलेक्ट द सैम्पल बेस्ड प्योरली ऑन रिसर्चर नॉलेज and credibility. In other words, researchers choose only those people who are fit to participate in the research study. Okay. So यहाँ पे आप क्रिएट करते हो, मैंने आपको पहले बोला कि जब आप क्रिएट करते हो तो उस टाइम पे आपका ये भी फोकस हो सकता है कि आप उन स्टूडेंट को भी ले सकते हो, उन पार्टिसिपेंट को भी ले सकते हो जो आपको रिसर्च के लिए करेगा, या आप नहीं भी ले सकते हो. सो एट द एंड this word is important that here we are creating a sample according to our convenience. We are creating a sample. Okay, but when we talk about the judgmental sampling, okay, judgmental sampling में आप उन्हीं लोगों को लेने वाले हो जो आप जिनका टॉपिक ही वही है जिसमें आप रिसर्च कर रहे हो. ओके आप उन्हीं लोगों को, फॉर एग्जांपल अगर टीचिंग रिलेटेड अगर कोई रिसर्च है, ओके तो अगर मेरे सैम्पलिंग में कुछ टीचर्स आ जाते हैं, कुछ रेगुलर पीपल्स आ जाते हैं, देन इट कम्स अंडर कोटा सैम्पलिंग. फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रिएट करता हूँ तो ठीक है, बट इफ आई कंसिडर ओनली टीचर्स देन इट कम्स अंडर जजमेंटल सैम्पलिंग, क्योंकि आपने पर्पसफुली आपने उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट किया है, ओके विच आर फिट, ओके टू योर रिसर्च स्टडी. ओके विच आर फिट टू योर रिसर्च स्टडी. तो इन दोनों में ये डिफरेंस है. ओके सो बेसिकली आप बोल सकते हो इट इज मोर जनरल. कोटा सैम्पलिंग इज मोर जनरल, जिसमें आप क्रिएट कर सकते हो आपके हिसाब से. ओके एंड जजमेंटल सैम्पलिंग में ओके यू हैव टू सिलेक्ट ओनली दोज पार्टिसिपेंट्स हु आर फिट टू दैट रिसर्च स्टडी. ओके सो आई थिंक कुछ एग्जांपल दिया है. अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग इफ द रीजन व्हाई पीपल वेयर आई ग्लासेस
to read books. So common sense tell us that the efforts of research group should be focused entirely on people that indeed wear eyeglasses. ठीक है, दिस प्रोसेस इज जजमेंटल सैम्पलिंग, जो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा था. ठीक है, तो जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका एक्सपेरिमेंट है, आप अगर 19 पार्टिसिपेंट को उसमें अलाउ करते हो या उन्हीं पार्टिसिपेंट को अगर आप सैंपल में लेते हो जो डायरेक्टली उससे रिलेट करते हैं, देन इट कम्स अंडर जजमेंटल सैम्पलिंग. ओके, टीचर्स का तो आप टीचर्स को ले सकते हो. आई ग्लासेस पे अगर आपका कोई रिसर्च है तो आप ऐसे ही लोगों को टारगेट कर सकते हो who are wearing these eye glasses. ठीक है, सो लाइक दैट. सो इट डिपेंड, जो आपका एक्सपेरिमेंट है उस हिसाब से आप अपना सैंपल डिसाइड कर सकते हो. जजमेंटल सैम्पलिंग. ओके, हाँ, तो सेम आई ग्लासेस का एग्जांपल मैंने लिया. या आपका पॉपुलेशन है, अगर आई ग्लासेस पे आप रिसर्च कर रहे हो तो आप उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करने वाले हो who wearing this आई ग्लासेस. ठीक है, सो दिस बिकम योर पॉपुलेशन लाइक दिस. ओके, एंड देन next is snowball sampling. Snowball sampling is also known as chain referral sampling technique. Snowball sampling is where research participants recruit the other participants for a test or a study. Okay, अभी आपको वर्ड से समझ में आ रहा है, इट्स अ रेफरल सैम्पलिंग. ओके, तो इसमें आप क्या करते हो? ओके, सो कोई भी एक आपका एक रिसर्च टॉपिक है. ठीक है, तो उसमें आप सैंपल में ऐसे लोगों को लेने वाले हो. ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज माय फर्स्ट मेंबर, दिस इज माय सेकंड मेंबर, दिस इज माय थर्ड मेंबर. ओके, आप ऐसे लोगों को लेने वाले हो जिनके रेफरेंस से आपको और मेंबर्स मिल सके. ठीक है, तो अगर मैं 5-1 को मेरे सैंपल में लेता हूँ ना, तो 5-1 के साथ मुझे और लोग मिल जाएंगे. 5-1-1, 5-1-2, 5-1-3, 5-1-4 लाइक दैट. ओके, सो चेन रेफरल सैम्पलिंग. ओके, तो आपने अभी इसको पूरा राइट्स दिया, इस मेंबर को आपने राइट्स दिया कि आप आपके जो कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं आप उनको टारगेट करो. ओके, तो इस एक मेंबर के वजह से और 4 मेंबर्स आपके सैंपल में ऐड हो रहे हैं. ओके, तो एक्चुअली रिसर्चर का ये पूरा राइट्स होता है कि उसको कौन से मेंबर या मेंबर सैंपल में कलेक्ट करने. इट डिपेंड टोटली ऑन द रिसर्चर. ठीक है, बट इस केस में क्या होता है, स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है, okay, simply you can say these are the representative of your sampling. okay, आप एक कुछ रिप्रेजेंटेटिव को ही सिलेक्ट करते हो, फिर उनका जो रेफरेंस है उन रेफरेंस से बाकी मेंबर्स आपके सैम्पलिंग में ऐड हो जाते हैं. तो यहाँ पे आप ये जो रिप्रेजेंटेटिव है इनको आप पूरे राइट्स देते हो टू कलेक्ट द मेंबर्स इन द सैम्पलिंग. ओके, सो दिस कम्स अंडर स्नोबॉल सैम्पलिंग. तो यहाँ पे आप कुछ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म करते हो और उनके जो रेफरेंस है उनसे आपको यू कैन क्रिएट दैट होल सैंपल. ओके, तो उनके जितने भी कॉन्टेक्ट्स है उससे बाकी मेंबर्स भी आपको मिल जाते हैं एंड इन दिस वे यू कैन फॉर्म योर सैम्पलिंग. ओके, सो स्नोबॉल सैम्पलिंग इज वेयर द रिसर्च पार्टिसिपेंट. हाँ, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रिसर्च पार्टिसिपेंट्स रिक्रूट द अदर पार्टिसिपेंट फॉर द स्टडी. तो जो रिप्रेजेंटेटिव है दे विल रिक्रूट पार्टिसिपेंट्स फॉर द स्टडी. तो ये पार्टिसिपेंट्स को या जो रिप्रेजेंटेटिव आप उनको डायरेक्टली ये राइट्स देते हो कि यू कैन रिक्रूट द पार्टिसिपेंट्स फॉर द स्टडी. ओके, सो दैट कम्स अंडर स्नोबॉल सैम्पलिंग. ओके, फॉर एग्जांपल क्या दिया है, पीपल हु हैव मेनी फ्रेंड्स आर मोर लाइकली टू बी रिक्रूटेड इनटू द सैंपल. जो अभी आपको मैं बोल रहा था, वेयर वर्चुअल सोशल नेटवर्क आर यूज, देन दिस टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्चुअल स्नोबॉल सैम्पलिंग. ओके, तो सिंपल, जिनके ज़्यादा कॉन्टैक्ट रहेंगे, जिनसे आपको ज़्यादा रेफरेंस मिल सकते हैं, आप उन्हीं लोगों को आपके सैम्पलिंग में पहले कंसिडर करोगे एंड उनके थ्रू जितने भी मिलेंगे दैट यू हैव टू जस्ट ऐड इन योर सैंपल. ठीक है, लाइक दिस है ना. तो दिस आर माई 2 रिप्रेजेंटेटिव. यहाँ से मुझे 3 रिप्रेजेंटेटिव मिले. आई विल गेट द 3 पार्टिसिपेंट्स. इन 3 पार्टिसिपेंट्स से मुझे इतने सारे पार्टिसिपेंट्स मिले. सो इट्स गोज ऑन. ओके, सो यूजिंग रेफरेंसिंग यू कैन कलेक्ट दैट सैंपल. ठीक है, सो 2 रिप्रेजेंटेटिव से आपको इतना बड़ा सैंपल मिल रहा है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज स्नोबॉल सैम्पलिंग. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो इस टॉपिक में बेसिकली ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है.
ओके तो आपको भी पता है इसमें कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इस टॉपिक के लिए बेसिकली आपको क्या प्रिपेयर करना है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट कौन से सैम्पलिंग टेक्निक में आता है, उतना ही आपको इसमें प्रिपेयर करना है। ऐसे आपको कुछ क्वेश्चंस रहेंगे फाइनल एग्जाम में, ठीक है? क्लियर हो गया? एनी डाउट? आज के सेशन में इतना ही लेने वाला हूँ, सैम्पलिंग का पार्ट लेने वाला हूँ, एंड फ्रॉम नेक्स्ट सेशन विल एक्चुअली स्टार्ट द हाइपोथेसिस टेस्ट। ओके, वो होगा नहीं अभी कवर, सो इट्स बेटर दैट विल टेक इन द नेक्स्ट सेशन। हाइपोथेसिस टेस्ट में मे बी विल कवर द काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट एंड एनोवा टेस्ट। इतने सारे टेस्ट है, देखते हैं कितना उसमें से हो सकता है। मिनिमम 2 और 3 टेस्ट वी हैव टू कवर, एंड दैट इज ऑल अबाउट योर 4th यूनिट, ठीक है? तो ये जो पहला सेक्शन है ये भी इजी सेक्शन है, जिसमें बस आपको डेफिनेशन याद रखनी कि स्नोबॉल सैम्पलिंग में जनरली क्या होता है, जजमेंटल सैम्पलिंग में क्या होता है, देन कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है। ओके, तो ये इसलिए मैंने हर एक केस में डायग्राम से भी वो शो किया, तो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दोज केसेस। आई थिंक दिस मच प्रिपरेशन इज इनफ फॉर द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। यस, एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? एनी डाउट? टेल मी यस और नो। डाउट है कुछ इसमें? नो सर। ओके, ठीक है, सो विल स्टॉप हियर टुडे। आज मैं इतना ही लेने वाला हूँ। नेक्स्ट सेशन में हाइपोथेसिस टेस्ट हम स्टार्ट करने वाले, क्योंकि उसकी पीपीटी थोड़ी इनकम्प्लीट है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन दैट आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट दैट नेक्स्ट टॉपिक। ओके, यहाँ तक मैं जो भी मटेरियल है मैं आपको वो शेयर कर दूंगा। आफ्टर दैट 2 और 3 टेस्ट आर रिमेनिंग, मे बी 2 लेक्चर्स में, नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में आपका ये टॉपिक हो जाएगा, आपका ये यूनिट हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीक वी नीड टू कंप्लीट योर सिलेबस, ठीक है? और ये भी इजी यूनिट है जिसमें आपका स्कोर ज़्यादा होगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। इजी टॉपिक है, मैथमेटिकल पार्ट तो ज़्यादा है ही नहीं, थ्योरेटिकली ज़्यादा है। ओके, सो इफ यू डोंट हैव एनी डाउट विल स्टॉप इट। Okay, so no need to put your roll number in chat box. I can directly fetch your attendance. Okay, now you can leave this bit. I can directly fetch your attendance, so no need to put roll number in chat box. So recording share, sir. Yes, I will share this recording. Both recording I will share.